We are starting with our workshop, and as I told you that at the end we'll have one surprise for you. Yes. So now it's a step one. You have zoomed in to start your journey, and here I would like to have one word for all of you that yes, today you are going to get a very good knowledge about your IELTS reading. So congratulations, you have entered into the world of navigators where you're going to enjoy a lot. So here, let me tell you that IELTS is your passport to the future, that your future that you're planning to go abroad, either for your studies or for your immigration. For that, the IELTS is very much necessary. And today, you will be knowing much more about securing your desired score in IELTS. So here, before we start this session, we have some rules. Yes. Wherever it comes to education, every time we have some rules and regulations to follow. So we do at Navigators have some rules, and that rules is just go to our page on Instagram, and you have to like it and subscribe it. Even, yes, I'll be sending you the link so that there will be two benefits. First of all, you will be getting our latest updates. Even we are sending some tips and strategies on daily basis on our Instagram. So that will be very much again helpful to you. Yes, so you have everyone have 2 minutes to go for. Just quickly go to the Instagram, follow us, and come back to the workshop. Yes, everyone. Yes, I can see that many people are rushing towards it. Yes, and liking our page. Very good, everyone. Yes, I would like everyone to participate in it, everyone to go to the Instagram and follow us. The link is just there on the screen. You can see. Yes, you have 2 more minutes to go and follow us to get your daily updates about IELTS, not only about reading, but you will also get updates on writing, speaking, listening, and other modules, and even tips and strategies. So everyone there, yes. So I hope everyone is done and came back to our session. So let's now move to the practical training session. So everyone is ready? Yes, everyone is ready today to know the most interesting thing about a little bit boring topic of IELTS module, that is reading, right? I suppose that for everyone, reading is like, seems to be quite a tricky module, and everyone want to know that what are the tips which can not only make it very interesting, but also easy. I can assure you that in my today's session. Yes. So moving towards the first part, let me tell you that who is this workshop for? So first of all, I would like to say this workshop is for the students who are planning to go abroad for study purpose, that is for student visa. Second, it is for the people who are planning to immigrate abroad, that is the one who are planning to go for PR. And the last one is it is for the candidates who are seeking for 8 bands. Yes. So 8 bands is a very big desire, and a thing which can give you easy access to any university, or college, or even for the PR. So yes, we are moving further. This workshop, today's workshop, is a very shortcut to what? To achieve the tips and techniques in this world, achieve strategies in this workshop, as well as we will be knowing the do's and don'ts, which are very important at times. Students don't know the things they are doing. Is it correct or not? They should do it or they should not do it. So we'll move on and know more about our IELTS. Now here I would like to say one disclaimer that results may not be typical. To results we have are from the other niche have been getting. Also, we are showing you a process that has worked in favor of thousands of people, and you need to execute it or go through it. And once you are executing it and 100% following it, I can assure you to get very good score in your IELTS. Yes, now let's talk about me. I am the host of today's workshop, and my name is Karishma Joshi. I am the founder of Navigators Education, which is based in Gandhinagar, Gujarat.
And if I talk about my achievements, so till now, I would like to say that I have been certified by IDP, British Council, Cambridge University, PTE, TOEFL, and many other such English courses. So I would like to say that I am an international trainer from all these institutes, and till date, I have trained more than 6,000 students with my 17 years of experience. Yes. If I talk about my institute, Navigators Education is a very professionally managed organization from years that offers different services like the coaching of IELTS, PTE, even French language. And also we are dealing with the visa consulting and the counseling for the major countries like UK, USA, Australia, Canada, New Zealand, and many more. Yes. Moving further, yes, let's know the agenda of this workshop. What is our agenda? Like, why we are having this workshop today. So first of all, we will understand the structure of IELTS reading. Like, we should know what is the structure of our IELTS reading. The assessment criteria, that is, you should know that, like, what are the right and wrong, and like, what's assessments, like, what score you will get and what number of correct answers. But we are going to discuss each and everything in today's workshop. And the important thing is, today you will be getting smart strategies and skills to achieve your high score. Yeah. So moving further, now we are on our workshop of reading. We'll just have a brief idea about the structure of what IELTS reading is. And today my workshop will go a little bit of bilingual language. That is, it will be in a Hindi and English both, so that all the audience can get the benefit of today's workshop. Yes. मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे भी ऑडियंस है अभी. Yes, if someone Twinkle, you are doing some yes lines, please don't do that. It is distracting the PPT site. Yes, कुछ लोग है. एक तो पहले मैं थोड़ा और रूल्स बता दूं. आप प्लीज जो भी फीचर्स के का इस्तेमाल कर रहे हो, इफ यू आर अननोन अबाउट इट, प्लीज डोंट डू दैट. Yes, there are, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बाकियों के लिए हो रहा है. So please use the features if you are knowing then and then only. Yes. All right, so let's come. Yes, आज हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्सचर ऑफ बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, क्योंकि सारे कैंडिडेट्स ऐसे नहीं होंगे कि जो 100% इंग्लिश में समझ पाएंगे. Yes. So yes, starting with what reading module is for academic and general training both. Here I would like to say that the reading test lasts for 60 minutes. Yes. To explain you, reading is of 1 hour. You don't get a single extra minute. Remember, in your reading examination, 60 minutes, you have to attempt the task. You have to write the answer into your answer sheet. Everything to be done in 60 minutes. Next is both module consist of 3 sections. Here I am talking about both academic and general module. So both academic and general training module reading consists of 3 sections with different type of questions. We'll learn each and everything step by step. In both the tests, the sections are in order of increasing difficulty. Yes. Many of you must be knowing, many of you who are doing your IELTS, like, preparation, or who are doing with the reading and all, they must be knowing that, yes, ma'am, as we are doing our section 3 is getting a little bit like, tougher. It is getting a little bit difficult. Yes. So here your text will be there. They will be in order of increasing difficulty. The text have been written on topics. Now, what kind of topics do they include? Like, someone have some questions like, we are not belonging to this faculty, or like, we are of this faculty, so we can understand this section more. So it is not about all that. IELTS reading text are all based on general interest. Okay, so that we can say the topics are taken from some magazines or some journals, booklets, newspapers, and others, because it is a language test. It is a not test for some particular, like, we can say faculty, like it is for some biology students, or it is for some economic students. So it is for all. So that's why the topic which are taken in the text are from different magazines, journals, booklets, newspaper, and many other things. At least one text contains a detailed logical argument, and one text may contain non-verbal material.
Okay, so now what do you mean by non-verbal material? Non-verbal material means like, some diagrams, graphs, some technical terms, but all this glossary is used for academic module. Yes, so when you're planning to go for a student visa, you might have some paragraphs in your reading, which are some like, a non-verbal, that is a technical, or some diagrams or graphs, like, and this kind of paragraphs can be there. So what about general training module? Yes. So general training module is for the candidates who are seeking to go for immigration. It is for the working person in our simple terms. अगर हम simple terms से बात करें तो वो working लोगों के लिए होता है. तो उसका जो focus होता है context का, that is mainly about the training programs or welfare needs in general training center. Clear? Yeah. Moving further to the question types. Now let's have a just a rough knowledge about what kind of question types do we have in our IELTS reading. So first of all, I would like to tell all of you that here in IELTS reading, you don't have a descriptive questions. Okay, you have all the objective type of questions, and there are fixed some 7 or type of questions which they ask you, and those answer you need to attempt, okay, from the text which is given to you. So in both academic and general training reading module, a variety of questions are chosen from the following question types. So first, there is a multiple choice. That means one question is given to you, multiple options are given to you, and you have to select either one or two answers from that. Next you have is a short questions. Now, as I told you that there is no brief questions, brief answers you don't have to give. आपको बड़े बड़े आंसर्स नहीं देना है यहाँ पर, ठीक है. तो शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसके आंसर भी बहुत शॉर्ट रहते हैं, जैसे कि नो मोर देन 3 वर्ड्स. आईएलटीएस के रीडिंग में कभी भी 3 वर्ड से ज्यादा आंसर्स नहीं रहते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज अ सेंटेंस कंप्लीशन. एक सेंटेंस होता है तो उसको वहां पे वो ब्लैंक करते हैं, आधा सेंटेंस होता है तो रिमेनिंग हमें पैराग्राफ में से देख के उसको कंप्लीट करना होता है. नेक्स्ट जो होता है वो है नोट, समरी, डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेबल कंप्लीशन वगैरह रहता है. Next, choosing from heading bank or identified paragraphs, sections of the text. ठीक है, इस तरीके का होता है जहाँ पे हेडिंग्स होते हैं या तो आइडेंटिफाई पैराग्राफ, वहां पे ए बी सी डी करके पैराग्राफ दिए होते हैं, और दूसरे क्वेश्चंस में हमको हेडिंग बैंक होता है या तो फिर पैराग्राफ आइडेंटिफिकेशन के नोट्स या समरी दी हुई होती है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज विल बी सर्चिंग फॉर दोस पैराग्राफ्स द प्रॉपर हेडिंग or the what is paragraph talking about. Then this is the one type of again question. Next जो है वो identification of writer's view और उसके claim, जो हम सभी लोग बहुत ही ज्यादा aware है, that is yes, no and not given. And the another one is identification of the information in the text. So देखो ये दोनों का फर्क होता है कि when you are identifying a writer's view, at that time your question type is yes, no and not given. And when you have to do an identification of the information from the text, at that time you have your question type is true, false and not given. Yes. Next question type is classification. Now they're classifying certain question. Okay, you can also say in the fill in the blanks format. Okay, so there is a classification of your questions. Next, you're matching list or phrases. They are giving you some list or some phrases, and that you have to match from A, B, C, D. Again, looking from to your paragraph. And last is we like to say that here, a very important point where we are going to remember is that no extra time is allowed to transfer your answers. So here I would like to give you one tip, or I would like to tell you one thing, or there is one strategy here we can use this directly transfer your answer, or directly probably write your answer to your answer sheet. Okay. At times, here I would little bit like to describe more that students are having a habit, while they are attempting their questions, what they used to do is they used to write down answer in the question paper itself. Okay. Now, I told you initially that you don't get a single extra minute to transfer your questions to your answer sheet, which many of you might be aware about, who are preparing for IELTS. कि भाई listening जो होता है ना, तो listening में you get this 10 minutes extra time. पर वो लोग भूल जाते हैं कि हमें reading में ये time नहीं मिलता है. हमारे पास 60 मिनट ही रहती है. 60 अटेम्प्ट भी करना है, और उसका आंसर सारे लिख भी देने. When 60 minutes will be there, examiner will take up your paper back.
ठीक है, तो रिमेंबर दिस थिंग कि जैसे ही आप आंसर ढूंढ रहे हो उसको आंसर शीट में डायरेक्टली ही ट्रांसफर करो। अभी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्वेरी या क्वेश्चन भी रहता है कि मैम कई बार ऐसा होता है कि हमें आंसर चेंज करना पड़ता है, आगे जाके पता चलता है कि ये आंसर नहीं था। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि इट इज वेरी नाइस इट, हम लोग जो रीडिंग के आंसर्स होते हैं, रीडिंग लिसनिंग के, वी आर यूजिंग पेंसिल। ठीक है, अगर आप लोग मान लो कोई जानता नहीं है, पेन इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसकी जगह पे आप पेंसिल का इस्तेमाल करो। ठीक है, अगर आप पेंसिल का इस्तेमाल करते हो और मान लो कि आपको आगे जाके आंसर चेंज करना है, then it is very easy for you that you can erase it and you can change your answer. But do not write first your answer into your question paper. Okay, directly write your answer to your answer key. Yes, और इसके बारे में थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है जो मैं आपको देने वाली हूँ, बट दैट आई विल बी डिस्कसिंग एट द एंड ऑफ अवर सेशन। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा एंड की बात है, लाइक ट्रांसफरिंग अवर आंसर, सो विल डिस्कस इन द एंड। यस, so now moving towards a very important part now everyone, here I would like to say sit with your pen and paper. Okay, important things you can note down from here. And apart from that, one more thing is that if you have any question or queries about the tips that I'm going to discuss with you, please note down in your paper, so that at the end of our session we will be having a question answer round, and in that we will be discussing all of your questions. Whatever questions you have, I will try my best to give you all the answers for your questions. Okay, so everyone, please just quickly get your pen, pencil, and a paper with you to note down questions if you have any queries about it. Yes. So I hope everyone is ready to take out more and more questions. Yeah. So now moving, yes, to our tip number 1, that is before the test plan your time. Yes, now everyone please be very much focused over here. I'm going to make you understand each and everything which is very important for your reading test. Yes, now see, first and the foremost thing, I think that everyone in the workbook also have mentioned that, like, we are not able to complete our reading in time. I've gone through many of the workbooks, okay, which I all of you have just filled up and, like, sent back to us. So most of them, and even I have seen with my students, I'm teaching from last, 16 17 years, and I've always seen that initial base, students are always stuck up with, ma'am, I'm not able to complete within time. So at that time, even I'm pranked with them, don't you get 60 minutes? We have given you less minute time or what? Then they said, no, ma'am, gave us 60 minutes. I said, then why you didn't complete it? Right? So this is what we need to plan our timing. Yes. And this is, I think, the very big question for, I think, every student, having a proper time management, they're not able to complete in time. So please do follow this, my tips and strategies, and I can assure you, not assure you, but I would like to say, I can guarantee you that you will say, ma'am, I saved my time in reading. Yes, even my student used to tell me after their final examination, ma'am, I had 10 minutes of time I completed before that. And I hope the same you will be telling to me. Yes. So let's come to our point, how to plan your time. So first point is have a proper time management plan. Now, all this thing you are going to practice in your reading right now when you are preparing for your IELTS examination. तो आप लोग अभी से शुरू कर दो ये, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट एक प्लान बनाओ, तो उसमें क्या करोगे? तो सबसे पहली है कि क्विकली ओवरव्यू द होल पेपर विद इन 2 to 3 minutes. ठीक है, 2 से 3 मिनट में हम लोग क्विकली क्या करेंगे, पेपर का ओवरव्यू करेंगे. अभी ये टिप्स है ना जो ज्यादातर स्टूडेंट राइटिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं. कैसे बताऊं? देख लो ऐसे कौन से टॉपिक का है. ठीक है, अगर इजी टॉपिक है तो ग्राफ भी अच्छा रहा, टफ टॉपिक है तो ग्राफ भी बिगड़ा, ऐसे भी बिगड़ा. सो वो एक्चुअली वहां पे इस्तेमाल नहीं करना है राइटिंग में, ये टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे रीडिंग के लिए. ठीक है, हम एक ब्रीफ ओवरव्यू फटाफट से हम पेपर देख लेंगे और हम देखेंगे कि हाँ क्या है, कौन से टॉपिक्स पे पैराग्राफ्स है, पूरे क्वेश्चंस कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, एक फटाफट का हम ओवरव्यू कर लेंगे पूरे रीडिंग के ऊपर विद इन 2 to 3 minutes आउट ऑफ अवर 60 minutes. यस,
नाउ द सेकेंड थिंग इज द डोंट्स इन द रीडिंग. डोंट्स जो है वो नहीं करना है. अगर आप कोई कर रहे हो तो मत करो. Don't use a sliding scale style. Now, what is a sliding scale type? Now, what is a sliding? Sliding means like, going on this or going on this. स्लाइडिंग स्केल स्टाइल मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया जब मैंने रीडिंग के बारे में बता रही थी कि लाइक यू हैव ईच एंड एवरी टेक्स्ट कमिंग अप विद द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी. तो वो सारे लोग जानते हैं कि भाई पैसेज से तो डिफिकल्ट ही होने वाला है. तो हम क्या करेंगे, आई एम प्लानिंग यूजिंग माई ओन थिंग्स. मेरा टाइम मैनेजमेंट मैं अपने आप से खुद से करूंगी. आई विल टेक 15 मिनट्स फॉर सेक्शन 1. I will take 20 minutes for section 2 and I will be taking the rest of time for my section 3. तो मैंने सेव कर लिया मेरा टाइम. तो उसमें क्या करोगे आप, सेक्शन 1 जल्दी जल्दी करोगे 15 मिनट्स से. तो वहां पे आपने शुरुआत कर दी आपके गलत आंसर्स के नंबर्स बढ़ाने की. ठीक है, मतलब आपकी जो एक्यूरेसी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी. सेकेंड सेक्शन में भी आप जल्दी जल्दी में रहोगे क्योंकि मुझे टाइम बचाना है, लेकिन आप एक्यूरेसी पार्ट भूल जाते हो. ठीक है, जब कोई भी टेस्ट एक डिजाइन होता है तो उसके लिए कुछ वो लोग रिसर्चेस वगैरह करते हैं और इसके लिए आपको प्रॉपर टाइम देते हैं. अगर आपको 20 मिनट्स मिला है सेक्शन 1 में तो यूज दोस 20 मिनट्स इन सेक्शन 1 बिकॉज वी डोंट हैव टू गिव एन एग्जामिनेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट. We are here to give our examination to get more correct answers. ठीक है, तो एक्यूरेसी पे फॉलो करो, एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान दो, नहीं कि टाइम मैनेजमेंट. स्लाइडिंग स्केल में क्या होगा कि अगर आप लाइक यू आर यूजिंग लेस टाइम तो पीछे गलत होते गए. पीछे सेक्शन 3 तो वैसे भी टफ है. ठीक है, तो उसमें 20 मिनट लिया कि 30 मिनट्स लिया, आपको वो टफ ही लगने वाला है. ठीक है, तो वो किस में क्या करोगे, आप सारा सेक्शन 1 और 2 भी बिगाड़ोगे और एंड ऑफ द time, end of your reading, you will be not coming up with your desired score. You will end up with your very less scoring. So please don't use sliding scale style if you are using. Next thing for your planning the time is make a time strategy specifically for tricky question. ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन मतलब मान लो कि हर एक स्टूडेंट जो होता है ना उसके लिए हर एक चीज अलग अलग होती है. जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ तो मुझे मान लो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ट्रिकी लग रहा है. ठीक है, फिर कोई और है यहाँ पे, मान लो गायत्री है, तो गायत्री को मान लो कि शी इज फाइंडिंग द हेडिंग पार्ट लाइक ट्रिकी. देयर इज वन मोर लाइक निशांत. सो निशांत है तो निशांत को मान लो उसको लगता है कि मुझे मैम मुझे फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ही ट्रिकी लग रही है. तो हर एक स्टूडेंट का अपना एक अलग ही ट्रिकी क्वेश्चन टाइप होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो व्हाट इज योर ट्रिकी क्वेश्चन एंड देन मेक अ स्पेसिफिक टाइम स्ट्रेटेजी फॉर दोस ट्रिकी क्वेश्चन. ठीक है, तो उसके लिए आप ये भी कर सकते हो कि मान लो कि मुझे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ट्रिकी लग रहा है तो उसका मैं पर्टिकुलर टाइम मैनेजमेंट करूंगी कि नहीं इसमें तो मैं इतने टाइम लेने वाली हूँ, या तो उसको मैं अलग से उस तरीके से करूंगी कि वो पोर्शन को मैं लास्ट में कर लेती हूँ. ठीक है, सो हैव सम स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी फॉर योर ट्रिकी क्वेश्चन. और उसके लिए फिर भी ज्यादा से ज्यादा 1 और 2 मिनट, उससे ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे उसमें. ठीक है, next is use amount of time you save, that is 1 to 2 minutes to quick check the accuracy of your answers. ठीक है, अभी ये टाइम मैनेजमेंट पे अगर आप जाओगे कि शुरुआत में 2-3 मिनट आपने देख लिया, फिर स्लाइडिंग स्केल का इस्तेमाल नहीं किया, आप ट्रिकी क्वेश्चन के लिए 1-2 मिनट निकाला, तो लास्ट में आपके पास शायद 1-2 मिनट बचे रहेंगे. ठीक है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, तो वो टाइम को आप असेसमेंट पे डालो. अभी असेसमेंट कैसे करोगे मैडम, वापस ना पूरा रीडिंग कर देखने बैठने वाले हम लोग. No, you are not going to do that. But what you are going to do in this 1 or 2 minutes, you are going to see first thing. Prashiv, yes, please आप लोग कोई scratches वगैरह मत करो, please. It's getting distracted. Yeah, don't use the tools which you are not aware about. वो tools का इस्तेमाल मत करो जो आपको नहीं आता है. Yes. तो यहाँ पे हम थे कि यस 1-2 मिनट जो बचता है उसमें चेकिंग क्या करेंगे हम लोग, क्या क्विक चेक करेंगे. तो सबसे पहले कई बार क्या होता है हम देख के भी गलत स्पेलिंग लिख देते हैं क्योंकि एक एग्जामिनेशन फोबिया होता है, जल्दी जल्दी लिखो तो लाइक कोई इजी वाला स्पेलिंग भी है वो हम गलत लिख देते हैं. सो हैव अ लुक ऑन के भी हाँ मैंने सारे स्पेलिंग सही लिखे हैं, ग्रामेटिकल एरर नहीं किया मैंने, कहीं पे लगता है तो वो लगा दो. नेक्स्ट है वहां पे एक रूल होता है कि आंसर शीट में बॉक्सेस होते हैं आपके, तो वो बॉक्स के बाहर कोई आंसर नहीं जाना चाहिए. तो वो चेक कर लो कि जल्दी जल्दी में मैंने कहीं ऐसा नहीं लिख दिया ना कि वो बाहर जा रहा है बॉक्स के.
So all these things you need to check, a quick check at the end of your paper. And last, have an emergency strategy if you get into difficulties. Yes. अभी एक इमरजेंसी स्ट्रेटेजी बनाओ, ठीक है? वो डिफिकल्टीज के वक्त, डिफिकल्टी क्या आती है? तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट में डिफिकल्टी, जैसे मैंने शुरू में ही बोला, टाइम नहीं बचता है सेक्शन 3 में। मैम टाइम नहीं बचता है, हमारे तो 10 क्वेश्चन बाकी थे और मैम 60 मिनट्स हो गया, ठीक है? तो मान लो कि हमने सब कुछ प्रैक्टिस किया है, सब भी कुछ हमने यहाँ पे क्लास में आप प्रैक्टिस कर रहे हो या तो घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, you are able to complete within 55 minutes or 60 minutes. चलो शायद तो शायद कट थ्रोट 60 मिनट्स में कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है? पर फिर भी एक इमरजेंसी स्ट्रेटेजी बनाओ, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जैसे कि 5 मिनट बची और 10 क्वेश्चन बाकी है, तो क्या करोगे? तो एक मैं यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल दे देती हूँ कि एक इमरजेंसी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। जस्ट वन एग्जांपल कि उस वक्त आपको पेशेंस रखना है सबसे पहले, डोंट गेट पैनिक। सेकेंड थिंग, कुछ ऐसे आंसर्स होते हैं जो गैस वर्क पे चलते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो वहां पे आप क्या करो, गैस वर्क करके वो आंसर्स को लिखो। और सबसे पहले और बड़ी बात है कि यहाँ पे आंसर कोई भी छोड़ना नहीं है, बिकॉज देयर आर नो नेगेटिव मार्किंग्स, ठीक है? जैसे कि मान लो वो गैस वर्क करने का भी टाइम नहीं है मैडम मेरे पास 2 मिनट बची है और मेरे पास तो 6 क्वेश्चन बाकी है, तो मैं क्या करूँ? तभी मैं देख लूंगी वो 6 क्वेश्चन कौन से हैं। तो मानो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है तो सारों में ट्रू लिख दो, ठीक है? पर उसको ब्लैंक मत छोड़ो। मानो ऑप्शनल क्वेश्चन है, ए बी सी डी ऑप्शन वाले हैं, तो या तो बी या तो डी या तो ए या तो सी, आपको जो भी कंफर्टेबल है, लेकिन एक ही लेटर सारों में लिखो। तो ये एक इमरजेंसी स्ट्रेटेजी है कि मैं ऐसा करूंगी या मैं ऐसा करूंगा। तो उससे क्या होगा, एक लेटर सारों में क्यों लिखना है? मान लो मैंने बी लिखा क्वेश्चन नंबर 34 टू 40 में, 35 और 37 बी आता है तो मुझे 2 करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? एटलीस्ट 2 तो करेक्ट होंगे। पर अगर मैं रैंडमली कुछ भी लिख रही हूँ तो चांसेस है कि मैं वही 2 में बी ना लिखूं, एंड आई एंड अप अगेन विथ अ 0 मार्क्स, ठीक है? सो हैव सम इमरजेंसी स्ट्रेटेजी लाइक दिस, ओके, फॉर योर डिफिकल्ट टाइम इन योर रीडिंग सेक्शन, ओके? वन मोर थिंग यार आई वुड लाइक टू लेट यू नो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी, जो मेरे एक्सपीरियंस से स्टूडेंट ज्यादातर जो करते हैं ना, उनको एक आदत होती है, दे हैव वन थिंग कि व्हाई आई एम नॉट गेटिंग क्वेश्चन नंबर 6, मुझे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्यों नहीं मिल रहा है? तो मैं आज को 6 को तो ढूंढ के ही रहूंगी या ढूंढ के ही रहूंगा, एंड व्हाट यू एंड अप विथ इज यूजिंग 15 मिनट्स या तो 10 मिनट्स इन सर्चिंग आंसर नंबर 6, एंड स्टिल यू आर एंडिंग अप विथ इधर छोड़ भैया लिख देती हूँ या लिख देता हूँ, पर कंफर्म तो नहीं हूं मैं, ठीक है? मानो कंफर्म भी हो चुके हो, पर आपने क्या किया, एक क्वेश्चन के पीछे आपने 10 मिनट्स बिगाड़ा, मतलब कि आप दूसरे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, सो प्लीज try to have a mentality or like have one thing to leave the question and move on. एक को पकड़ के मत बैठे रहो, ठीक है? Here I would like to suggest कि कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप 40 क्वेश्चंस लेते हो, ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि 2-3 मिनट आप शुरुआत में जस्ट ओवरव्यू के लिए रख दो, 2-3 मिनट आप लास्ट में बचाओ, ठीक है? तो हम लोग मान लो कि 2 और 3 लेते तो 5 मिनट हम बचा रहे, वी हैव 55 मिनट्स रिमेनिंग, वी हैव 40 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन की 1 मिनट, ठीक है? तो 40 मिनट्स हो गई, पर ट्रिकी क्वेश्चंस है कुछ, तो उसमें मुझे 2-2 मिनट एक्स्ट्रा लगा, तो क्वेश्चन है तो मुझे मेरी और कितनी हुई, मान लो 10 मिनट एक्स्ट्रा हुए, स्टिल 50 मिनट्स, फिर भी मेरे पास 5 मिनट बचती है। तो वो 5 मिनट में क्या करना है कि ट्रिकी क्वेश्चन में से अगर 2-3 ऐसे भी हुए जो मुझे 2 मिनट में भी नहीं मिले थे, तो वो मैं लास्ट के 5 मिनट में ढूंढूंगी। पर हम तो ऐसा नहीं करते हैं। What we are doing more is like we will stuck up to one question or stick to it till we are not getting answer. तो वो ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं ढूंढना ही है 6 का आंसर, लास्ट में ढूंढो, टाइम बचा के ढूंढो। शुरू में ढूंढोगे टाइम वेस्ट करोगे, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे यू विल बी क्रिएटिंग मोर पैनिकनेस इन योर माइंड, एंड दैट विल एंड अप विथ नॉट गेटिंग मोर करेक्ट आंसर्स. Yes. So this was our strategy or tips number 1, that is before the test, plan your time, which is very important one. Moving towards second tip. Now during the test, what you are going to do? Yes. Overview the questions
and passages. And how? Let's see further. What does overviewing means? So अगर मैं हिंदी में बताऊँ ना तो like you know just बड़ा 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 देख लेने का, नजर डाल लेने का उसके ऊपर. ठीक है, हम अगर कहीं पे जाते हैं like you know कहीं पे होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो like you know we'll have a big look like this, like you know what is the ambience, seats कैसी है, ऐसा है. तो वही चीज हमें रीडिंग के पैसेजेस में डाल देना है, थोड़ा ओवरव्यू कर लेना है टू गेट द जनरल इंप्रेशन. जैसे कि मैंने भी बोला कि होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम एक देख लेंगे, हाँ हाँ यहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं है, एम्बियंस अच्छा है, लाइक यू नो एवरीथिंग एसी चल रहा है, एवरीथिंग विल लुक. सो यहाँ पे पैसेज हम देखिए जनरल इंप्रेशन ले लेंगे कि हाँ ये कैसा होगा. Second thing is build up understanding of the meaning as you go from general understanding to the specific meaning to help you understand the topic of the passage. Now बहुत बड़ा बड़ा लगा ना, so I'm explaining you very easily. यहाँ पे क्या होता है कि ये पॉइंट ऐसा कहना चाह रहा है कि आपको जो क्वेश्चन का टॉपिक दिया गया है उसको देख के एक जनरल आइडिया लगाओ कि हाँ भाई पैराग्राफ इसके बारे में बात कर रहा होगा. ठीक है, जब तक आप स्पेसिफिक मीनिंग पे नहीं चाहते हो. स्पेसिफिक मीनिंग क्या होता है? तो क्वेश्चंस के अंदर रहे गए सब्जेक्ट आपके वो स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं. वहां तक जाओ, उसके पहले आप क्या करो, एक बड़ी नजर डाल दो अपने पैराग्राफ के ऊपर, उसके टॉपिक के ऊपर, और एक ओवरव्यू ले लो कि हाँ ये पूरा इसके बारे में. जैसे कि मान लो कि कोई पैराग्राफ है कि टॉकिंग अबाउट लाइक यू नो स्टडिंग न्यूजीलैंड लाइक यू नो XYZ यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो वहां पे क्या क्या होगा, कोर्सेज कौन से होंगे, तो हमें पता चल जाए कि हाँ ये इट इज समथिंग अबाउट यूनिवर्सिटी स्टडीज. ओके, नेक्स्ट चीज हमारी जो होती है, कई बार पैराग्राफ होता है ऑन लाइक यू नो से कोई हम एडवर्टीजमेंट होती है, या तो फिर कोई जनरल के टॉपिक की अगर बात करें तो अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स दी हुई होती है, और वहां पे होता है कि भाई आप रिक्वायरमेंट्स है तो कहाँ पे जाओगे, तो वो एडवर्टाइजमेंट्स को देख के पता चल जाएगा कि हाँ ये चीजों के बारे में एडवर्टाइजमेंट है, तो वी आर गोइंग टू हैव अ ब्रीफ लुक ओवर सर्टेन थिंग. तो एक चीज थोड़ी दिमाग में हमारी रह जाती है, तो उसके ऊपर से हमें अंदाजा आ जाता है. नहीं आता है तो लाना शुरू कर दो कि हाँ भाई ये टॉपिक है तो इसके बारे में बात की जा रही होगी. नेक्स्ट इज get a general idea about the subtopics of paragraphs and the type and the focus of each question group. ठीक है, अभी क्या करना है कि अगर सब टॉपिक्स, जैसे कि मैंने बोला कि कई बार सब टॉपिक्स भी होते हैं. ठीक है, पैराग्राफ के अंदर आप लोग ने बहुत सारों ने किया होगा तो पता होगा, नहीं किया है तो भी आप मैं बता दूं कि अगर कोई एक बड़ा पैराग्राफ है, ठीक है, तो उसके अंदर भी कई बार सब टॉपिक्स रहते हैं. ठीक है, मानो एडमिशन है, कोई यूनिवर्सिटी, न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी के बारे में कोई पैराग्राफ है, तो वहां पे होता है एडमिशन प्रोसेस, लाइब्रेरी यूजेज उसका होता है, यूजिंग द प्लेग्राउंड, इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए क्या होता है, मतलब ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए और लोकल स्टूडेंट के लिए, तो वहां पे उनको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी, ये सब बातें अंदर की होती है. तो अगर हम लोग एक बार वो सब टॉपिक्स को एक बार लाइक यू नो विल जस्ट हैव अ बिग लुक एट इट, सो विल अगेन हैव सम लाइक यू नो लिटिल बिट कंसेप्ट के हाँ it is going to talk about this things. And also when you are looking towards the क्वेश्चन ग्रुप मतलब हमें पता चल जाएगा क्वेश्चंस को देख के कि हाँ भाई ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है या ऑप्शनल क्वेश्चन है, और वी हैव सम लाइक यू नो मैच करना है, तो वो भी अगर हम एक नजर रख देते तो वी आर हैविंग समथिंग इनटू आवर माइंड दैट व्हाट वी हैव टू डू फर्दर. And last point in this tip number 2 is do a quick reading called skimming and scanning. Everyone is knowing, जैसे ही reading आ जाता है तो सब लोग को पता है कि skimming and scanning means having a like you know very important strategy for your reading. कि भाई reading है तो उसकी strategy है skimming and scanning. That means what? What does the skimming and scanning means? That is letting your eyes run freely across the particular locations in the text and the क्वेश्चंस. ठीक है, मतलब मैंने बोला एक रफली सारा कुछ देख लो, पैराग्राफ्स को देख लो, बड़ा बड़ा क्वेश्चंस को बड़ा बड़ा देख लो, तो वो सारी चीजों को हम जो बड़ा बड़ा पढ़ लेते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर मोर टाइम देन 2 to 3 minutes, that system or that strategy is known as a skimming and scanning system. Yes, so now moving further to our tip number 3. Yes, again letting you remember everyone that at the end of the session you are going to get a very good surprise, and that surprise will be definitely helping you or will be helpful to you for your further reading tips apart from this. Yes, so moving on to tips number 3. Before that, one more thing I would like to tell you everyone that at the end of the session, before our question answer part,
मैं चाहूंगी कि एक 5 मिनट के लिए आप सब लोग अपना वीडियो ऑन करोगे, तो एक दो चीज होगी, एक मैं भी आप लोग को देख पाऊंगी, समझ पाऊंगी कि आप लोग लाइक आई बी आल्सो वेरी हैप्पी टू सी यू हु आर माय कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स। और दूसरा, आई वुड लाइक टू हैव वन गुड पिक्चर ऑफ ऑल ऑफ अस अटेंडिंग दिस वर्कशॉप. So before we come to question and answer part, yes, I would like and I would appreciate everyone if you switch on your cameras. Yes. Now let's go to our tip number 3, that is guessing meaning from the context. ठीक है, ये सारी चीजें आप अभी प्रैक्टिस के वक्त ही आपको इस्तेमाल करना है, ये टेक्निक्स का, ये सारी टेक्निक्स का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो रीडिंग आपको जो अभी तक टफ लग रहा है वो आपको बहुत ही इजी लगेगा. यू से दैट नो इट्स वेरी इजी टू सिक्योर like 8 bands in reading, because reading is like mathematics. मैथमेटिक्स में हम लोग 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं, वैसे रीडिंग में भी हम लोग 9 आउट ऑफ 9 बैंड्स भी ला सकते हैं. जैसे ही मैथमेटिक्स में हर एक सम का हमारे पास कंसेप्ट और आइडिया होना जरूरी है, वैसे ही रीडिंग में भी अगर आप लोग सारे कंसेप्ट और स्ट्रेटेजीज या तो उसके टिप्स से आप क्लियर हो तो आप रीडिंग में भी 9 आउट ऑफ 9 बैंड्स ला सकते हो. इट्स वेरी इजी. चलो नाउ गेस मीनिंग फ्रॉम दी कॉन्टेक्स्ट. अभी थोड़े गेस वर्क के भी आते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हर एक चीज का नॉलेज हमारे पास नहीं होता है. जैसे कि मान लो मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, अगर कोई साइंस का टॉपिक आ गया तो मेरे पास उतना नॉलेज नहीं होगा जितना साइंस के स्टूडेंट के पास होगा. और मान लो कॉमर्स के रिगार्डिंग कोई टॉपिक आ गया और मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मुझे उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा. तो वहां पे हमें क्या करना है, मान लो कोई कॉन्टेक्स्ट ऐसा आ जाता है या तो टेक्स्ट ऐसे टॉपिक पे आ जाता है, हमें ज्यादा पता नहीं है, तो वी विल यूज अवर guess work. Yes, and that really helps. First is guessing helps to understand the complex text. या कई बार हमें होता है ना कि बाप रे ये टेक्स्ट तो कितना कॉम्प्लेक्स है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो उसका गेस वर्क करो. कैसे करोगे? Using the surrounding words will help you understand the meaning of unknown words. Yes, कई बार ऐसा आ जाता है ना, पैराग्राफ के ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है. उस वक्त क्या करो, उसके आजू बाजू वाले वर्ड्स को करो, उसको निकाल दो, उसको मत समझो. ठीक है, तो उसके आजू बाजू वर्ड्स को आप वहां से लो और उससे एक समझ क्रिएट करने की ट्राई करो कि हाँ ये कुछ ऐसा बोल रहा है. ठीक है, तो एक वो चीज काम करेगी. दूसरा है यूजिंग सराउंडिंग वर्ड्स हेल्प यू टू मेक द इन्फॉर्म्ड गेसेस. मतलब क्या, सराउंडिंग वर्ड का आप इस्तेमाल करोगे तब आपको क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा है तो उससे आप क्या करोगे, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ भाई ये बात जो क्वेश्चन कर रहा है और यहाँ पे आगे पीछे के वर्ड्स ये चीजें कह रहा है, तो पर्टिकुलर आंसर यही रहेगा. तो क्या होगा, तो आपको एक पर्टिकुलर आंसर मिलने के लिए गेस वर्क, टिपिकल या लाइक हम जो बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स जब पैराग्राफ आ जाता है तो उस वक्त हमें वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है, गेस वर्क. और ये सारी चीजों का आप अभी while practice start using all these things and you will definitely come to know that how you are improving with your scorings. Yes, moving to fourth number. Start with the questions first, then move to the text. Yes, this helps focused searching. अभी यहाँ पे क्या है कि कई बार कई स्टूडेंट्स एक लाइक टेक्निक फॉलो करते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ने बैठते हैं. अभी नाउ यू नो दैट पैराग्राफ इज एज लॉन्ग एज 2500 to approximately 2800 words big paragraph you have. Okay, so we don't have that time in reading, like as all of you know, जिसने भी कर रहे हो या तो नहीं किया तो पता चलेगा कि रीडिंग के पैसेजेस इतने बड़े होते हैं कि लाइक वी डोंट हैव दैट टाइम टू सिट एंड रीड होल पैराग्राफ एंड अंडरस्टैंड एंड देन गो टू द क्वेश्चन एंड देन सर्च. अगर आप ये प्रोसेस कर रहे हो ना तो आई डोंट थिंक सो कि आप 1 आवर में थर्ड पैसेज पे आ भी पाओगे. आपका शायद सेकंड पैसेज जो है, पार्ट 2 जो है, वो भी इनकम्प्लीट रहेगा इफ यू आर फॉलोइंग दिस टेक्निक. सो प्लीज इफ एनीवन इज फॉलोइंग दिस, डोंट फॉलो दैट. पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है. हमने जैसे आगे समझा कि हम लोग उसके सिर्फ हेडिंग्स पढ़ेंगे, सब टॉपिक्स दिया है तो वो समझेंगे, थोड़ा गेस वर्क लगाएंगे और देन विल मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन. तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है पॉइंट. सबसे पहले आप क्वेश्चन से स्टार्ट करो, फिर टेक्स्ट पे जाओ और फोकस सर्चिंग करो. तो वो कैसे करेंगे, सो लेट्स लुक एट इट. This may help you to identify a section which provides the information you are looking for within the text. Yeah. कई बार क्या होता है कि हमने उसके पहले देख लिया कि हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, सब टॉपिक्स पढ़ेंगे और लाइक जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया वो देखेंगे. अब मान लो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, तो मैंने जैसे कि वो एक एग्जांपल दिया कि न्यूजीलैंड की कोई यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर. तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है कि XYZ स्टूडेंट है, उसको ओवरसीज से आया है, उसको यहाँ पे एडमिशन चाहिए,
तो मुझे तुरंत स्ट्राइक होगा कि हाँ, आई विल बी गेटिंग दिस आंसर फ्रॉम दी पैसेज विच इज टॉकिंग अबाउट एडमिशंस। ठीक है, अगर वहां पे क्वेश्चन में बोला है कि स्टूडेंट इज सर्चिंग फॉर एनी लेजर एक्टिविटी लाइक यू नो इफ द कॉलेज और यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग, तो वहां पे कहीं पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है रिक्रिएशन, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, लेजर एक्टिविटी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो रिक्रिएशन वाले पैराग्राफ में मुझे आंसर मिलेगा। तो ये चीज क्या करेगी, इट विल हेल्प यू टू सेव योर टाइम एंड कम टू दी फोकस सर्चिंग। फोकस सर्चिंग मतलब मैं फिर वो लेजर एक्टिविटी का एडमिशन में पढ़ने नहीं बैठूंगी, और अगर वो पढ़ने बैठे हो, ठीक है, देन यू आर डेफिनेटली वेस्टिंग योर ओन टाइम। प्लीज हैव दिस थिंग, आप जब भी रीडिंग करने बैठो, लाइक यू नो कीप योर प्रेजेंस ऑफ माइंड प्रॉपर, और एक एक वर्ड को पकड़ो कि भाई लेजर एक्टिविटी है तो वो कहाँ पे होगा, तो रिक्रिएशन में मिल सकता है मुझे। ठीक है, तो अगर वहां पे जाओगे तो वो आपका फोकस सर्चिंग होगा, मतलब कि इट विल सेव योर टाइम, एंड नॉट ओनली सेव योर टाइम, it will bring to you at a point where you can get your accurate answer, and that what we want. Yes, चलो, तो ये पहली चीज है कि हम लोग फोकस सर्चिंग करेंगे, और हम लोग जो है सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, और हम लोग जो हमारे इंफॉर्मेशन प्रॉपर दी हुई है तो वहीं पर जाएंगे। सेकेंड थिंग, लुक एट द टाइटल्स एंड हेडिंग्स। जैसे मैंने अभी बात किया कि टाइटल्स या हेडिंग्स जो है उसके ऊपर देखो, कई बार पैसेजेस में टेबल होते हैं, डायग्राम होते हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती है, हमें थोड़ा क्लू देती है क्वेश्चन में से, जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं तो उसके आंसर ढूंढने में हमें क्लू देता है, तो वो उन चीजों पे भी एक बड़ा बड़ा नजर डाल लो, मतलब कि लाइक यू नो जस्ट गो विद द स्कीमिंग पोर्शन। Again, starting your question first will help to look for specific words, ideas and supporting details. Yes. क्वेश्चन पहले क्यों ढूंढना है, पैराग्राफ पहले क्यों नहीं पढ़ना है? तो सबसे पहले अगर मैंने क्वेश्चन में पढ़ा कि मुझे लेजर एक्टिविटी के बारे में जानना है स्टूडेंट को, ठीक है, तो वो एक क्या हुआ, स्पेसिफिक वर्ड हुआ। ठीक है, स्टूडेंट को एडमिशन के लिए कुछ चाहिए तो वो स्पेसिफिक पर्पस हुआ या स्पेसिफिक आइडिया हुआ। ठीक है, अगर ये सारे वर्ड्स मेरे माइंड में है और जब मैं पैराग्राफ को स्कीम कर रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू सिट एंड रीड एवरीथिंग. I will only come to the point where they are talking about either the admission or either they are talking about recreation or leisure activity. And as soon as I am getting those words, I will just underline them with the pencil. That is, I will highlight them. I will go back to my question. I will read and match the things and I will write my answer. Simple and clear and very easy. Next thing is, as there is no time to read the whole passage slowly, as I said firstly, so it is better to know in advance what you are trying to find in the passage. जैसे कि मैंने बोला कि पैसेज बहुत लंबे होते हैं, ठीक है, वी डोंट हैव टाइम टू सिट एंड रीड द होल पैसेज। ठीक है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो दैट विल हेल्प यू टू फाइंड योर आंसर वेरी 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 क्विकली। ठीक है, so now we are going to use a technique in reading to first go to the question, mark out the things what we are searching for, and we'll go only to the focus searching portion. Yes, so this is our tip number 4, which is again very very important one. Moving further to tip number 5. Analyze the structure of each passage. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पैसेज मतलब क्या होता है, तो हर एक पैसेज का भी एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पैसेज जैसे कि अलग अलग होते हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला कोई डायग्राम वाला होता है, कोई डिस्क्रिप्टिव होता है, कई बार कोई नैरेटिव टाइप का पैराग्राफ होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मतलब कोई भी एक चीज है तो उसका डिस्क्रिप्शन होता है, नरेशन मतलब राइटर कोई नरेट करता है कोई चीजों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस पैराग्राफ के स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे कि वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, नैरेटिव टाइप का है, कि मिक्सचर ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड नैरेटिव है। So as you move from question to text and back, मतलब आप सबसे पहले क्वेश्चन पे देख रहे हो, फिर टेक्स्ट पे जाते हो, वापस क्वेश्चन पे आते हो, you need to take control of the passage by analyzing it or marking it. And how? So see here, divide the passage into section based on paragraphs. ठीक है, पैराग्राफ्स के बेस पे हम लोग उसको डिवाइड कर लेंगे, मतलब ए बी सी डी, या तो फिर आप पार्ट ये 1, ये 2 और ये 3 ऐसे हम लोग डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, यूजुअली हम लोग क्या करेंगे, विल यूज द फर्स्ट सेंटेंस इन द पैराग्राफ। सारों को अंडरलाइन कर दो तो हमें पता चलेगा, फर्स्ट सेंटेंस को अगर आप पढ़ोगे ना तो पता चलेगा कि ये पैराग्राफ हाँ इसके बारे में बात कर रहा है। सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन अंडरलाइन करोगे तो पता चलेगा हाँ यहाँ पे ये बातें हो रही है। तो उससे क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन को देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसका आंसर मुझे यहीं पर मिलने वाला है।
नेक्स्ट थिंग इज आप कर सकते हो जब भी पैराग्राफ देखो तो मानो नैरेटिव है मतलब कोई राइटर्स के व्यूज ओपिनियंस थिंग्स वगैरह दिए, कई बार कोई इवेंट्स होती है तो वो कब अकर होती है, तो क्या होता है कि राइटर्स के नाम दिए होते हैं, कई बार ईयर्स मेंशन होता है इन्वेंशंस का, तो हम लोग ब्रीफ जब हम लोग कर रहे होते हैं लाइक व्हेन वी आर स्कैनिंग अवर पैराग्राफ व्हाट वी आर गोइंग टू यू आर गोइंग टू सर्कल दोस थिंग्स। ठीक है, जैसे कि राइटर 3 है तो वो तीनों के नाम जहां जहां पे है तो मैं सर्कल करूंगी। एक और चीज मैं कर सकती हूँ, मानो कि 3 राइटर है, ठीक है, तीनों के बारे में अलग अलग जगह पे सब कुछ लिखा है तो मैं अलग अलग साइन यूज करूंगी। जैसे कि राइटर नंबर ए तो उसके नाम के आगे मैं जहां जहां मुझे दिख रहा है मैं सर्कल करूंगी। राइटर नंबर बी उसको मैं स्क्वायर करूंगी। राइटर नंबर सी, ठीक है, उसमें मैं क्या करूंगी, रेक्टेंगल करूंगी तो ट्राइंगल कर दूंगी पेंसिल से। तो क्या होगा कि अगर मेरा क्वेश्चन बात कर रहा है कि राइटर ए ये चीजों के, या तो फिर मुझे कुछ समरी दी है कौन से राइटर क्या बात कर रहा है, तो मैं क्या करूंगी कि वो चीज पढ़ूंगी, फिर राइटर नंबर ए के जो है सर्कल्स है तो मुझे पता चलेगा कि हाँ यहाँ 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 ही वो राइटर है। सो इट विल मेक टू मी फाइंड माई आंसर वेरी वेरी क्विकली, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग माई टाइम। और वापस एक ही चीज मुझे वापस वापस नहीं ढूंढने बैठना है, अभी राइटर नंबर ए आंसर मिल गया, बी 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 ये मिल गया, तो अगेन एंड अगेन लाइक इट विल नॉट मैश अप योर माइंड बेसिकली। तो दिस विल हेल्प यू। या तो फिर डेट्स है तो डेट्स को भी मार्क कर दो, तो जब भी क्वेश्चन पे ये डेट के बात की, हाँ हमें तुरंत ही नजर वहां पे पड़े, ठीक है। सो दैट दिस विल अगेन नॉट ओनली सेव योर टाइम, इट विल ऑल्सो सेव योर एनर्जी एंड योर मूड। या next thing is scanning the passage for synonyms, very important part for specifically 8 band seekers। जब 8 bands को टारगेट कर रहे हो ना तो synonyms तो बनता है आना। yes excuse me या synonyms तो रहेंगे। तो उस वक्त हम क्या करेंगे कि हम कुछ वर्ड्स है जो कॉमन वर्ड्स यूज होते हैं पैराग्राफ में तो उसके सिनोनिम्स है तो उसको एक ब्रीफली नजर डालेंगे, उसको सर्कल्स करेंगे या तो मार्क करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा तो वो आंसर्स भी हमें क्विकली और इजीली मिल सकते हैं। एंड टेस्ट क्वेश्चंस आर ऑफन क्रिएटेड बाय यूजिंग, दे एक नोट है, एक्सप्रेशन इन द क्वेश्चन व्हिच कैन बी अ सिनोनिम। ऐसे एक्सप्रेशन यूज करके वो बनाए जाते हैं कि जो सिनोनिम्स होते हैं, तो सिनोनिम्स को पढ़ना, तैयार करना और ढूंढने की प्रैक्टिस करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ऑल दिस एक्सरसाइजेस यू कैन डू राइट नाउ, यू कैन टेक सम पैसेजेस एंड हैव प्रैक्टिस ऑफ एवरीथिंग कि हाँ भी मुझे ये राइटर्स के नाम ढूंढने वाली प्रैक्टिस के क्वेश्चन करने हैं, सिनोनिम्स ढूंढना है, तो अभी से अगर आप लोग ये थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो definitely you will learn lot many synonyms and also you will learn lot many techniques, easy techniques, and this will help you to make your reading very very interesting from boring. Yes, all right, so again moving further to the second last tip, that is tip number 6, remember common test patterns. Yeah now what is a common test pattern? So common test pattern means earlier the questions relate to material in the earlier paragraph of the text. टेक्स्ट में होता है ना कि अगर कोई मटेरियल के बारे में, मटेरियल मतलब कि वो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है ज्यादातर, तो शुरू में उसके बारे में बात होगी और एंड में बात होगी, फिर बीच में तो उसका डिस्क्रिप्शन होता है, तो शुरू में और एंड में भी चीजों को थोड़ा नजर डाल लो, पढ़ लो कि हाँ कौन सी चीजों के बारे में क्या क्या बात हो रही है। सो हैव अ कॉमन पैटर्न ऑन दैट। लेटर टेस्ट क्वेश्चन रिलेट टू मटेरियल इन द लेटर पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट, या ये चीजें भी है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक पूरा पैराग्राफ है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर मान लो 21 to 25 हमारे पास है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो उसके आंसर मुझे पहले 3 पैराग्राफ में से मिल रहा है, 3 पैराग्राफ हुए मेरे ब्लैंक्स खत्म हो गए, दूसरे भी 2 पैराग्राफ बाकी है और बाद में क्वेश्चंस आते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ठीक है, तो वो डेफिनेटली पैराग्राफ नंबर 4 से ही शुरू होंगे, वापस नहीं जाएंगे वहां पर। So this is the pattern calling, understanding the pattern of your test. And last के अगर आप ये पैटर्न के बारे में जानते हो, अगर आप पैटर्न समझते हो, तो दिस विल अगेन हेल्प योर टाइम, क्योंकि वापस आप वो पैराग्राफ नंबर ए में ढूंढने नहीं बैठो, क्योंकि हमें पता है कि भाई बाकी के क्वेश्चंस जो है वो आगे पैराग्राफ नहीं आए तो वो यहीं से शुरू होते हैं, ठीक है, या तो फिर सब्जेक्ट्स होते हैं कि भी चलो ए बी सी के जो सब्जेक्ट होते हैं वो अलग होते हैं, डी से थोड़ी अलग बात होती है, भले मेन टॉपिक एक ही रहता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सब्जेक्ट डिफर होता है, तो वहीं से भी आपको वो पैटर्न अगर आप समझना शुरू कर दोगे तो वो आपको पता चलेगा कि नहीं हाँ ये क्विकली होने लगेगा फिर, तो अंडरस्टैंड द कॉमन पैटर्न ऑफ योर टेस्ट। एंड यस, मूविंग ऑन टू अवर लास्ट टिप, and again letting you know that we have a good surprise for all the attendees in the end.
of our session. Yes. So now last tip. And after that, we'll have one photo session. That is, we'll have our cameras on, we'll have one photo, and then we'll move on to the question answer part, and where I will be answering all your question and queries about your reading test. Yes. 7 number point, leave no empty answers. Yes, as I told in the beginning of my session, that there are no negative markings. No negative marking means not to leave any empty space. Simple. लिख तो दो, बाई चांस भी सही हो गए, गेस वर्क हो गया, ठीक है. और जैसे कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि जो मार्किंग सिस्टम है, ठीक है, मैं समझाती हूँ भी मार्किंग सिस्टम भी थोड़ा. तो उसमें कई बार एक मार्क से, एक सही से हम लोग 0.5 बढ़ा सकते हैं, 0.5 कम भी हो सकता है. सो यस, नेवर लीव योर आंसर्स एम्प्टी. So even if you finish, or if you're running out of the time and may not finish all the 40 questions, leave a minute at the end to make a quick guesses. ठीक है, क्विक गेसेस करके आप आंसर्स को लिख दो, जहां पे भी आपका छूटा है वहां पर. दिस विल हैव टू मैक्सिमाइज योर हाई स्कोर. ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा मैं बात करूंगी स्कोर्स के बारे में. स्कोर्स जैसे कि ऑनलाइन अवेलेबल होता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम 23 सही है तो मेरे 6 बैंड होते हैं, 33 सही है तो मेरे 8 बैंड्स होते हैं. सो देयर इज नथिंग लाइक ऑफिशियल स्कोर गाइड प्रोवाइडेड बाय इधर आईडीपी, ब्रिटिश काउंसिल और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. उन लोग ने कहीं पे भी ऐसा नहीं दिया. दैट इज जस्ट एन आइडिया फॉर यू, बट दे हैव अ वेरिएशन दैट इट कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू योर लेवल ऑफ पेपर. वहां पे थोड़े चेंजेस हो सकते हैं. ठीक है, तो डोंट फॉलो कि भाई मेरे इतने सही है तो मुझे इतने मार्क्स मिलने वाले हैं. सो yes, please have a thing. If you are targeting band 8, your correct answers in the practice also should be more than 36 out of 40. Then you will be able to secure your 8 bands. And if you are seeking for 7 bands, try to practice for more than 33 correct answer. And for 6 bands, I would suggest 30 correct answers in your practice. Then in your examination, you will be able to achieve your desired score. Yes. So this were my 7 tips, okay, which even I got to learn from my training sessions, which I had from trainers from Cambridge, even from the British Council, who were the real examiners. जो सही examiners हैं ना, उनसे मुझे जो ये tips जानने को मिली थी, this is what I have done, that I have delivered to you, and that will definitely help you to get definite desired score. And yes, I can assure कि मेरे बहुत सारे students को मैंने ये चीजें सिखाई है, उन्होंने पढ़ा है. बट द मेन थिंग इज एग्जीक्यूशन. अगर आप ये सारी चीजों को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, देन डेफिनेटली यू आर not able to at certain point come up with your desired score. Yes, so try to have all the things into your mind, try to follow everything. Okay, practice for this thing. It will not happen in a day or two. You need to practice on each and every portion, in each and every tips and the sub tips which I have given to you. And then you will be able to secure 8 bands definitely.